Hello students, I am Vinay Kumar Singh from RKVM. Today I am going to teach you class 5, chapter number 15, the social awakening. The social awakening, the two main consequences of the revolt of 1857 were the setting of the British government's direct rule in India and the awakening among the Indians to get independence. The arrival of British officials of India created an awakening among the educated Indians to get independence. They wanted to remove social evils, ignorance, blind faith, and uplift the social status of the people of spreading education. 1857 की क्रांति का ये सबसे बड़ा प्रभाव ये हुआ कि भारत का जो ये शासन था वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्वीन के हाथों में चला गया। और दूसरा क्या था कि हमारे समाज में लोगों ने आज़ादी के लिए संघर्ष की जो भावना थी वो उनके भीतर में जगी। इसके लिए सबसे बड़ा जरूरी था कि हमारे देश में जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर किए जाएं। द सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक, some well-known reformers and thinkers like Raja Ram Mohan Rai, Swami Vivekananda, Keshav Chandra Sen, Mahadev Govind Ranade, Ramabai Ranade, Dayanand Saraswati, etc. were the prominent social reformers. In their efforts, they created various societies to uplift the status of women and for the betterment of the Indian people. Brahm Samaj. Raja Ram Mohan Rai was a great social reformer of the 19th century. He was born in Bengal in 1772. He founded the Brahm Samaj. He was influenced by the broad outlook of the European culture. The members of Brahm Samaj opposed idol worship and preached the belief in one God and the evils of sati system. ब्रह्म समाज की स्थापना के पीछे उनका जो मुख्य ये था कि महिलाओं के साथ जो पति के मरने के बाद जो उनको जिंदा चीते पर जला दिया जाता था, उस सिस्टम, सती सिस्टम को खत्म करने के लिए इन्होंने बड़े आंदोलन चलाए और इन्हीं के प्रयासों से सती सिस्टम जो है सो खत्म ही हुआ। वे समाज वाज फाउंडेड बाई केशव चंद्र सेन एंड महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर। प्रार्थना समाज इन 1868 महादेव गोविंद रानाडे फाउंडेड द प्रार्थना समाज एट बॉम्बे, नाउ मुंबई, एंड रमाबाई रानाडे फाउंडेड पूना सेवा सदन वेयर गर्ल्स वर trained as nurses. It also worked for the welfare of orphans and widows. Arya Samaj was founded by Raja Ram Mohan Rai. Arya Samaj was founded by Swami Dayanand Saraswati. However, there were other social reformers who had strong beliefs in Indian culture and custom. जिस तरह से ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, उसी तरह से समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन, स्वामी रामकृष्ण वाज ए प्रीस्ट इन ए टेम्पल नियर कलकत्ता, नाउ कोलकाता. He was a strong supporter of the Indian culture and believed that all religions were based on truth and peace. उनका ये अटूट विश्वास था कि सारे धर्म जो है सो ट्रूथ एंड पीस पर ही वो अवस्थित हैं. नरेंद्र दत्ता वाज ए डिसिपल हु स्ट्रांगली बिलीव्ड इन आइडियोलॉजी. ही लेटर बिकम फेमस एज स्वामी विवेकानंद. ही फाउंडेड रामकृष्ण मिशन. Even today, the Ramakrishna Mission is working towards the welfare of mankind by opening education institutions, hospital, orphanage, etc. Reformers in Muslim society. Muslim society में भी बहुत सारे reformers हुए, like सर सैयद अहमद खान.
took the support of the British to improve the conditions of Muslims. He founded Aligarh Muslim University. Sir Syed Ahmad Saritullah was also worked towards the reformation of the Muslim society. इनके अलावा सर सैयद अहमद सरितुल्लाह ने भी मुस्लिम समाज को सुधारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया. नवाब अब्दुल लतीफ एंड was another Muslim reformer who worked in favor of modernization in the Muslim society. उन्होंने मुस्लिम सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए बहुत सारे प्रयास किए. अब आते हैं हम लोग द पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स. इन द पॉलिटिकल एरेना द prominent leaders started setting up political associations such as the East India Association and the Association of Create Awareness and bring people together for the cause of towards independence. आज़ादी के लिए भी बहुत सारे ऐसी संस्थाओं का ये गठन किया गया था, लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय A.O. Hume इन December 1885. The following were the main aims of the Congress. Bringing leaders from different parts of the country together. यानी देश के अलग अलग हिस्सों के जो नेता हैं उनको एक साथ लाना, राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना और लोगों की मांग पब्लिक ग्रीवेंसेस बिफोर गवर्नमेंट, सरकार के सामने पब्लिक के मांगों को प्रस्तुत करना. मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट. अब कांग्रेस में ही दो धड़े थे, एक उदारवादी थे और एक गरमपंथी थे. W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, S.N. बनर्जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी.के. गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी were the prominent moderate leaders of the Congress. They demanded the following from the British government. उन्होंने अंग्रेजों से ये मांग की कि a large share in the administration of the country, यानी भारत के प्रशासनिक सेवा में उनको शेयर यानी एक स्थान दिया जाए. इंडिपेंडेंट एंड फेयर जुडिशियल सिस्टम फॉर ऑल. स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका सबके लिए होने चाहिए. ग्रेजुअली सब कांग्रेस लीडर्स फेल्ट दैट ओनली हम्बल रिक्वेस्ट एंड डिमांड्स वुड नॉट ब्रिंग एनी रिजल्ट. धीरे धीरे कांग्रेस के ही कुछ धड़े थे, कुछ लोग थे जो महसूस कर रहे थे कि अंग्रेजों से निवेदन विनती करने पर हमको आजादी या हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा. दे बिलीव्ड दैट ए स्ट्रॉन्ग एक्शन एंड ए स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज वाज नीडेड टू मेक द ब्रिटिश अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स. दे वर कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट. जो लोग अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कुछ आक्रामक तरीका का प्रयोग करते थे उनको एक्सट्रीमिस्ट या गरमपंथी कहा गया. लाला लाजपत राय इन पंजाब, बाल गंगाधर तिलक इन महाराष्ट्र एंड बिपिन चंद्र पाल इन बंगाल वर द प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स. द ओपनली डिक्लेयर्ड दैट मेन एम वाज टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस. उन लोग की एक सबसे बड़ी एक जो थी इच्छा थी या अंतिम अभिलाषा कि भारत को किसी न किसी रूप में आजाद कराया जाए और इसके लिए जो भी संभव तरीके हों उनको हम लोग पालन करें. तो हमने देखा कि हमारे समाज में उस समय जो बुराइयां थी, बुराइयों को दूर करने के लिए सोशल रिफॉर्मर्स हुए. राजनीतिक एकता को स्थापित करने के लिए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए गए, जिसमें कांग्रेस पार्टी की स्थापना अंग्रेज ऑफिसर एवं हुम के सत्प्रयासों से हुई और इस तरह से लास्ट में हम लोगों को 1947 में देश को आजादी मिली और इस तरह से हमारा चैप्टर जो है सो खत्म हुआ. ओके, थैंक यू वेरी मच.